Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning, sir. So I think we have already completed the tutorial sheet 2 in which we discussed few problems of clippers and clampers, and we will continue our numericals on clampers in tutorial sheet 3. I think this type of numerical has already been discussed in the class. So you try to solve it on your own, and in case you feel any doubt, you can share with me, you can ask me. So try to solve the question number first, which is determining the output voltage for the circuit shown in figure 1A and figure 1B. And you have to sketch the output waveform of V naught. So you have to remember these steps, follow those steps, and then solve. Do not just draw the waveform directly. You have to explain it also, how you have reached to that particular output waveform. जिन लोगों का कंप्लीट हो जाए वो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देना.
Okay, Arjun Lamba. Arjun, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you can you tell me how to approach this question? Sir, I was having network issues, so I don't know what we have to do right now. You have to solve the question number first, part Oh, A. okay, sir. तो आप देखिए, आपको क्या लगता है, आप बताइए अभी. हाँ जी सर, एक मिनट। मेहताब, यस सर. आप बता सकते हो कैसे अप्रोच करें इसको? सर इसमें मेरा आंसर आ रहा है कि वो पॉजिटिव साइकिल में 20 प्लस हो जाएंगे और रिवर्स में वो नेगेटिव साइकिल उसमें 0 आउटपुट में. कैसे होगा ये बताओ, क्यों होगा ऐसा? सर पहले हम निकालेंगे वी ए माइनस वी बी पॉइंट लेकर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए. हम्म, उससे हमारा आ जाएगा वी इनिशियल, जब 0 से कम होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा. तो आपने वी ए कौन सा पॉइंट माना? सर ऊपर. तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या कंडीशन निकल के आएगी? वी बी माइनस वी ए ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स वी बी पे क्या है? सर 0. 0 माइनस वी ए पे क्या है? वी इनिशियल, ये इनपुट इनपुट. should be greater than equal to 0. तो इससे हम कहाँ पहुंचे? That it is forward bias if VE is less than 0. 0. और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो वी आउटपुट 0 आएगी Okay, and V और कैपेसिटर output पे will be 20 equal to वोल्ट. 0. V output 0 क्यों होगी? सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना. वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा.
वो आइडियल डायोड है तो हमें कोई बैटरी से रिप्लेस भी नहीं करना। यस। ठीक है गाइस, तो हमें अप्रोच जो है वो इसी तरीके से करना है कि while solving the problems for clamper you have to first look for the that half in which your diode is becoming forward biased। आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू मत कीजिए, आप पहले VA और VB लिखिए and write the condition for diode to become forward biased। So we can see that maybe from this discussion the diode will be forward biased if input voltage is less than 0, and this corresponds to the time cycle, this one, that is negative half। this one, ठीक है। तो हम पहले नेगेटिव हाफ से ही स्टार्ट करेंगे आपकी इक्वेशन आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, to find out in which time cycle, in which half of the input wave your diode is becoming forward biased। Now once you find out the diode is forward biased, you simply replace that with its equivalent circuit। Now in this case the equivalent circuit will be simply a short line। Why? Because it is given that it is there is no mention of the type of the diode, whether it is silicon or germanium, so we will assume that it is an ideal diode। So this will be your equivalent circuit if you replace the diode in the forward bias। Now if it is short circuit, then the potential drop that you will find out now that you will be find out right here will be 0। So in the time cycle in which your diode is forward biased, the output voltage will be 0। So you can simply write here as 0। Okay, now try to find, now the second step is you have to find out the voltage across the capacitor that will be maintained during the this process। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा क्या मेथड है, जैसे हमने यहाँ पे VA VB किया है ठीक वैसे ही हम यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, इसको आप C मान लीजिए और इसको आप D मान लीजिए। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज मेंटेन रहेगा, वो रहेगा VD और VC में से सबट्रैक्ट करके जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो राइट नाउ D के ऊपर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आपका, वो या फिर यहाँ पे यहाँ से नीचे ग्राउंड कनेक्टेड है, तो D पे आपका हो जाएगा 0। ठीक है, और C पे आपका है V इनपुट। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज में हमारी कितना है -20 वोल्ट। ठीक है, so this will be give us 20 volt positive voltage drop, positive voltage store in the capacitor। now इस साइन से भी आप पता लगा सकते हो कि उसकी पोलैरिटी क्या होगी, और आप इस साइकिल से भी पता लगा सकते हो। जो भी पॉइंट आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा पोलैरिटी का, वही पोलैरिटी इसी पॉइंट पर आएगी। तो माइनस कनेक्ट था तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा। ठीक है, here will be minus, here it will be plus, और वोल्टेज रहेगी 20 वोल्ट। दिस इज ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन जब आप हमारी स्क्वायर वेव ही है तो हम सिंपली उसको -20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा केस हो गया ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल।
ठीक है, तो वो हम वो ओपन सर्किट हो जाएगा और 20 और 20 प्लस 40 हो जाएगा। इनपुट वेफे में हम अगला साइकिल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो 20 वोल्ट मिल रहा है प्लस का। यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, ये उसकी पोलैरिटी आपकी इसी तरीके से है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, माइनस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पे है, और 20 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, और योर इनपुट वोल्टेज इज नॉट लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इन दिस रीजन योर डायोड विल बी reverse bias, so it will not conduct, and you can simply replace it with an open circuit. So you can simply say that this will not be into the circuit. इसका इफेक्ट जो है वो सर्किट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, now look at the resultant circuit. 20 volt, 1 resistor, and we are taking output across this resistor. So whatever voltage sources are present in the network, all voltage will be appearing across this resistor. तो आप यहाँ पे KVL भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप KVL लगाओगे तो क्या बन जाएगा, V इनपुट यहाँ से यहाँ चल रहे हैं हम माइनस टू प्लस, तो वो आपका हो गया -20, अगेन माइनस टू प्लस -20, देन करंट की डायरेक्शन ये है, ये प्लस टू माइनस है, यहाँ पे आप प्लस देख सकते हो, यहाँ पे माइनस देख सकते हो, तो वो आपका आ जाएगा प्लस V आउटपुट। आप V आउटपुट की जगह लिख VR भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा V आउटपुट जो है वो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको इसी में बनाएंगे तो वो हमारी वेव फॉर्म बनेगी लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आपकी इसी साइकिल के हिसाब से होते रहेंगी। तो ये लास्ट वाला स्टेप एक और बार समझा दो। ठीक है, during the reverse bias, the diode conducts and the output voltage will be equal to the voltage across this diode. तो हमारे शॉर्ट सर्किट हो चुका था तो हमें आउटपुट मिल गई 0, बट ड्यू टू दिस शॉर्ट सर्किट, दिस इक्विवेलेंट सर्किट जो हम जिसमें हमारा सिर्फ एक कैपेसिटर है, रजिस्टर के इफेक्ट जो है वो नल एंड वर्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका कैपेसिटर जो डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो रजिस्टर के इफेक्ट उसमें आएगा नहीं। So your capacitor will be instantaneously charged to whatever input voltage we are applied to it. अगर साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे जैसे साइन वेव बढ़ती जाएगी वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका चार्जिंग टाइम बहुत ही कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे -20 वोल्ट था तो वो -20 वोल्ट के हिसाब से ही चार्ज होगा। ठीक है, उसकी पोलैरिटी का आपने ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से बनेगी। उसको याद करने का तरीका आपका यही है, अगर आपका कैपेसिटर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग voltage supply right here, तो जो पोलैरिटी आपकी यहाँ पे है वही आपकी यहाँ पर आएगी, जो यहाँ पर है वो आपकी दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरफ भी कोई बैटरी लगी हुई होती इस तरीके से, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो दूसरी तरीके से आएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस मिलेगा। तो इन दैट केस द रिजल्टेंट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा उसके हिसाब से वी विल डिसाइड हाउ मच वोल्टेज विल बी मेंटेन्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। दोनों की पोलैरिटी सेम है तो हम उनको ऐड कर देंगे और रिजल्टेंट यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस V1 प्लस V2।
अगर एक किसी इस तरीके से कनेक्शन है कि एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है, तो आप उसमें से देख लीजिए विच एवर इज हायर, उसी की पोलैरिटी सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि टू फाइंड आउट हाउ मेनी वोल्टेज विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड दैट वोल्टेज विल बी डिसाइडेड इन द टाइम साइकिल व्हेन योर डायोड विल बी रिवर्स बायस, forward bias, and during that time cycle your output is 0. Now when we will consider the next time cycle in which we are applying this positive 20 volt, which will be the next time cycle right here. उसमें आपका क्या होगा, now polarity is minus and plus. Now your diode will be reverse bias. ठीक है, आप रिवर्स बायस को इससे भी देख सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस 20 वोल्ट इस तरीके से बना हुआ है कि योर दिस इज प्लस एंड दिस इज एन साइड. So your diode will always be reverse biased in this time cycle. So if it is reverse biased, then we will replace it with its equivalent circuit, which is simply an open circuit. Your diode will not conduct at all. If your diode is not conducting, then you can simply remove this diode from the circuit, and your equivalent circuit will consist of only 120 volt supply, one capacitor which is charged up to 20 volt, and one resistor. Now the current will flow through the resistor. The direction of the current will be will decide the polarity of the output voltage. So right now minus plus, so current will flow in this direction from here to here. So we will get positive output voltage here. वो कितनी वोल्टेज होगी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग राइटिंग बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. एक आप इक्वेशन नहीं लिखना चाहते डायरेक्टली भी लिख सकते हो. दिस इज -20, sorry, this is 20 volt 40 volt divided by resistance R. That will be current flowing through the resistor, multiplied with the resistance. The whole voltage will appear across the resistor. But I will suggest to prefer this particular way, applying the KVL in the loop. KVL में भी आपको यही ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर पोलैरिटी को आपको मेंटेन रख के चलना है. जैसे मैंने यहाँ पे जब इधर से इधर मूव करना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, तो आई लुक्ड एट दिस पर्टिकुलर बैटरी. द माइनस साइन वाज पहले माइनस साइन था, बाद में प्लस साइन था. So from going from negative to positive terminal, I selected the polarity of minus. So first I write it as minus 20 volt. Then similar to the voltage across the capacitor, minus and plus. So minus 20 volt. Now when I reached here, now I find out the voltage, output voltage polarity, that is plus to minus. So I simply write it as plus V. Solve this equation and you will get the output voltage as 40 volt. ठीक है, सो द रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म विल लुक लाइक दिस. स्टार्टिंग में आपकी जो है वो यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगी, फिर 40 वोल्ट तक जाएगी, फिर 0 रहेगी. ठीक है, जनरली वी स्किप द फर्स्ट हाफ इन विच अवर डायोड वाज रिवर्स बायस. उसको हम स्किप कर देते हैं. वी स्टार्ट विद द टाइम साइकिल इन विच द आउटपुट इन विच द डायोड वाज फॉरवर्ड बायस. सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्लैंपर. अगर आपकी कंटिन्यूस एक वेव है जो लगातार आते जा रही है, तो उस केस में हम इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 40 वोल्ट. ठीक है, शॉर्टकट तरीका बाय जस्ट लुकिंग एट द सर्किट एंड देन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू विल गेट. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली check the direction of the diode from P to N. It is pointing upward, so your output waveform will shift upward. Sorry, the input waveform will be shifted upward. ठीक है. If there is no other capacitor, if there is no other external DC power supply connected in the branch of this diode except the input voltage, if there is no any other voltage, then your whole waveform will be shifted upward. ठीक है, and if diode is ideal,
in that case also. Diode ideal है, no external DC supply, your whole waveform will be shifted upward. ठीक है. Now in this circuit and in this circuit there is only one difference, that is of -5 volt. यहाँ पे एक बैटरी और लगी हुई है. ठीक है, तो इसी का भी याद करने का आपका वही तरीका है. You check the direction of the diode, which is it is pointing upward, so this waveform will also be shifted upward. तो वो हमारी, हम यदि इसको एक बार भूल जाते हैं, just forget about this supply, तो वो आपके आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से दिखाई देगी, which is same as in this circuit. Now we have connected an additional supply of -5 volt with this polarity. तो इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आपका माइनस साइन ऊपर है. So that means whatever output voltage you were getting with this diode only, now shift it by 5 volt with the negative direction, because आपकी नेगेटिव पोलैरिटी है यहाँ. ठीक है, तो आपकी जो भी आउटपुट वेवफॉर्म है, इसको सिर्फ 5 वोल्ट से आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए. दैट विल बी योर आउटपुट ऑफ दिस सर्किट. सर इसमें वो करके दिखाना -20 वाला. हाँ, वो अभी करते हैं. तो इसमें जो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी 35 वोल्ट, और नीचे जो आएगी वो आपकी आएगी -5 वोल्ट. -5. ठीक है, इसमें भी हम वही उसी टेक्निक से उसको करेंगे. जस्ट ठीक है, तो पहले हम सिंपली वो टाइम साइकिल देखते हैं जिसमें वो रिवर्स बायस है. तो इसमें भी ये रिवर्स बायस होगा इसी टाइम साइकिल में -20 वोल्ट. ठीक है, वही कंडीशन लगा सकते हो VA - VB वाली. तो ये विल फाइंड आउट, ये भी आपका रिवर्स बायस जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में ही होगा. नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ये शॉर्ट ओपन फॉरवर्ड बायस रहेगा, सॉरी रिवर्स बायस नहीं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. आइडियल डायोड है. तो व्हाट वोल्टेज यू विल गेट हियर, -5. यहाँ पे आप सिंपली उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक. आप इसमें KVL लगाइए, V0 विल बी इक्वल टू -5 वोल्ट. ठीक है, नाउ कंसीडर द केस. और जब अच्छा इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट विल बी दी पोलैरिटी एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कितनी स्टोर रहेगी. तो इनपुट वोल्टेज के हिसाब से आपका कितना आना चाहिए था, -20. तो माइनस आपका साइन ऊपर है, तो माइनस इधर, प्लस इधर. ठीक है, और इसकी पोलैरिटी आपकी जो वो मैग्नीट्यूड आ रहा है 20 वोल्ट का. ठीक है, फिर आपका है ये 5 वोल्ट का. तो इसके हिसाब से भी आप वैसे ही करो. यहाँ पे माइनस कनेक्टेड है, तो इस तरफ आपका माइनस आएगा, इस तरफ माइनस आएगा, इस तरफ प्लस आएगा, और इसकी पोलैरिटी रहेगी 5 वोल्ट. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या रहा, -+15 वोल्ट. नहीं सर, ये तो मेरे को सर नहीं सर, माइनस प्लस तो ऐड हो जाएगा ना. अगर वो सीरीज में लगे हैं तो ऐड होगा. अगर हम यहाँ से मूव करते इस तरफ जाते तो हम उसको ऐड करेंगे. लेकिन अभी तो हमारे दो वोल्टेज सोर्स हैं, और उसकी वजह से हम कैपेसिटर पे इफेक्ट देख रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसको दोनों का सर, अगर अपने दो बैटरीज को एक साथ जोड़े तो उनको माइनस प्लस के साथ जोड़ते हैं ना. हाँ, अगर आपकी बैटरी देखिए इस तरीके से लगी होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम ये बोलते कि दोनों को ऐड कर दो. इसमें भी तो वही केस है, इसमें माइनस प्लस नहीं नहीं, और नीचे. आप यहाँ पे इस माइनस प्लस को मत देखिए. आप ये देखिए, डायोड वाज कंडक्टिंग ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो यहाँ पर -20 वोल्ट था. दैट मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी आपकी इस तरीके से माइनस एंड प्लस.
ठीक है, अगर आप पोलैरिटी के हिसाब से चल रहे हो तो फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप वी इनपुट को ही रखिए, यहाँ पे आप रखिए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी पॉइंट। ठीक है, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज डेवलप होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई माइनस दिस 5 वोल्ट, 5 को इसको आप वी बी मान लीजिए, बायसिंग वोल्टेज वी बी, या वी डी ही है, इसको वी डी मान लीजिए, हमने वी डी मान लिया है। दिस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दी कैपेसिटर, दिस विल बी मेंटेन। अब आप इस इक्वेशन को याद रख लीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। If your input voltage is minus 20 volt and this is VD is equal to minus 5 volt, so minus 20 minus minus 5, that will come out to be minus 15 volt. ये हमारा कई बार कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इनपुट पे तो यहाँ पे हमेशा इसी तरह दिखाते हैं कि प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो आप इस पोलैरिटी को मत देखिए। ठीक है, इसके हिसाब से तो आप ये हमारे इनपुट वेव फॉर्म हमने अप्लाई कर दी है, तो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका माइनस 20 मिलेगा यहाँ। So in order to avoid the confusion, simply write it as VI and nothing else. आप VI ही उसको लेके चलिए। You write here that diode D is forward bias and voltage across the capacitor will be V. I am writing it VC as capacitor voltage और VC कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, VC will be equal to VC minus VB, which is equal to VC पे आपका है V input माइनस VD पे आपका है माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, अब इनपुट पे आपके देख लीजिए किस टाइम साइकिल में आपका वो फॉरवर्ड बायस है, तो उसके में हमारा माइनस 20 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट। अब एक बार अगर ये माइनस 15 वोल्ट आ चुका है तो फिर उसी के हिसाब से आप इसकी पोलैरिटी को डिसाइड करें। आपने VC से स्टार्ट किया था, उसी के हिसाब से माइनस 15 वोल्ट होना चाहिए, तो माइनस 15 के लिए माइनस साइन इधर होना चाहिए, प्लस साइन इधर होना चाहिए। एनीवन एनी डाउट? आप इस स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो इतनी कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अब 15 वोल्ट। Now consider the second half cycle in which your diode is reverse biased. ठीक है, when your diode is reverse biased, then you can replace it with an open circuit. ठीक है, तो ओपन सर्किट में हम सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ से कट करते हैं। So the whole effect of this capacitor, this diode will be now removed, and your circuit will be now consisting of only one capacitor and one resistor. ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस आपका माइनस 15 वोल्ट है, एंड राइट नाउ that we are considering the time cycle in which your input waveform is this one plus 20 volt. तो आप प्लस 20 माइनस 20 को छोड़िए, सिंपली कंसिडर VI। ठीक है, VI की पोलैरिटी के हिसाब से आप चलते रहिए एंड राइट दी इक्वेशन दैट VI माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो हम आई विल राइट माइनस ऑफ VI। फिर दोबारा से हम इसी के अंदर माइनस टू प्लस जा रहे हैं इन दिस साइकिल। ठीक है, तो माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो माइनस
वी सी लिख लीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहे हैं वी नोट में, तो विल राइट प्लस वी नोट इक्वल टू 0। अब वी आई की जो वैल्यू है नाउ दैट इज 20 वोल्ट माइनस 20, माइनस वी सी की जो वैल्यू है 15 वोल्ट 15 प्लस वी नोट इक्वल टू 0। So V naught will be equal to 35 volt. अगर आप VI रखते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपने साइनसोइडल सिग्नल्स लिए हैं उसमें भी आपको उसमें आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसमें आपका कंफ्यूजन जो है वो कम होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग +20 -20 वो आप बाद में पुट कीजिए। जस्ट टेक दिस साइकिल फर्स्ट फॉर द दैट साइकिल इन विच योर डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड देन दैट वन इन विच योर डायोड इज रिवर्स बायस। कीप दिस एज VI और उसके हिसाब से आप सोल्व करते रहिए, ठीक है। जब आप सारा सर्किट सोल्व कर लें उसके बाद जो याद करने का जो शॉर्टकट था वो मैंने आपको बता ही दिया था। अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस 5 वोल्ट बैटरी विल कीप डाउन बाय -5 वोल्ट, तो आपका वो नीचे आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे, जिसमें भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस रहेगा उसमें हर एग्जाम में आएंगे, मिड सेमेस्टर है एंड सेमेस्टर है, कोई भी क्विज है उसमें सब में मिलेंगे। So if you guys have any doubt, you can ask now. एक बार VC -15 वाला पार्ट को बता दो। ठीक है, ठीक है। टेक 2 पॉइंट्स, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस, ठीक है। इसको मैंने मान लिया डायोड की तरह, मैं इसको ए और बी ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एक डायरेक्शन दी हुई है, वी आउटपुट इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा डायोड के हिसाब से। तो आई विल सिंपली से दैट हम जो भी रेफरेंस लेंगे ना उसको आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ए लिया हुआ है तो उसी के हिसाब से मैं इस पॉइंट के हिसाब से पोलरिटी बाद में डिसाइड करूँ। So the voltage that will be stored in the capacitor will be equal to VA minus VB, ठीक है। VA पे मेरी जो वैल्यू है वो है दिस वन, V इनपुट, ठीक है। और B के ऊपर जो वैल्यू है मैंने उसको भी VD नाम दिया हुआ है, इसको VB ही रख लीजिए, बायसिंग वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आपका अपीयर रहेगा। अब आप उसकी पोलरिटी अपने आप चेक करते रहिए, इसको रिमेंबर रख लीजिए कि ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। VA minus VB के हिसाब से वोल्टेज विल बी stored, voltage will be developed across the capacitor। अब आप मूव ऑन कीजिए, फर्स्ट स्टेप जो हमारा था ये आप इसको 0th स्टेप कह लीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था फाइंडिंग आउट इन दिस डायोड कंडक्ट करता है इस हाफ साइकिल में, ठीक है, कंडक्ट करेगा, उसी केस में आपकी ये वोल्टेज जो है वो उसके अंदर क्रॉस अप कर रहेगी। अब आप ये देख लीजिए वी ए पे क्या लगा हुआ है, वी ए पे आपकी इनपुट वोल्टेज लगी हुई है, राइट, वी आई। पॉइंट बी पे क्या लगा हुआ है, उसकी पोलैरिटी देखिए -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, +5 वोल्ट। अब आप चेक कर लीजिए कि इनपुट वोल्टेज कितनी है, इनपुट वोल्टेज इस टाइम साइकिल में -20 है, तो -20 + 5 दैट विल कम आउट टू बी -15 वोल्ट। अगर ऐसा होता कि मैं डायोड की अगर डायरेक्शन ही चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने इस डायोड को ही रिप्लेस कर देते हैं हम नए डायोड से, जो कि इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये कब कंडक्ट करेगा, तो उसके कंडक्ट करने के लिए तो वही चीज है, इस
पॉइंट की वोल्टेज इस पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए, दिस VA माइनस VB शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वो टाइम साइकिल है जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, इतना फाइंड आउट करने के बाद अब डायोड को भूल जाइए। नाउ रिप्लेस द डायोड विद इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि आपका रहेगा सिंपली ये लाइन, देयर इज नो डायोड नाउ। ठीक है, अब हमने डिसाइड किया था अभी तक सिर्फ एक चीज, टाइम साइकिल, ये वाला है। इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी, दिस माइनस दिस। एट दिस पॉइंट वी आर टेकिंग VI and at this point it is still -5, that will be +5, फिर 25 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 25। तो 25 वोल्टेज विल बी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। ठीक है, और इस टाइम साइकिल में आपकी आउटपुट कितनी मिलेगी, जीरो, क्योंकि ये तो शॉर्ट नॉट जीरो सॉरी -5, क्योंकि ये तो जीरो हो गया था, तो यहाँ से आपकी जो आउटपुट मिलेगी वो आपको मिलेगी -5। तो -5 को मैंने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब 25 वोल्ट है, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है तो उसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखना है, प्लस ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा साइकिल, दूसरे साइकिल में ये है -20 वोल्ट, उसके अंदर ये रहेगा डायोड, जो हम दूसरे वाला डायोड लगाया था वो आपका रहेगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस रहेगा तो फिर उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट, और अगर वो ओपन सर्किट ही हो गया तो फिर आपका ये 0.5 वोल्ट की बैटरी वाला जो सिस्टम है वो भी अब इफेक्ट नहीं करेगा। अब आप ये वाला लूप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इसमें भी आप वही रखिए, VI ही रखिए, कोई इसकी पोलैरिटी के ऊपर वो मत जाइए, सिंपली राइट VI। आपने यहाँ पे माइनस प्लस ही लिखा हुआ है तो इसको -VI रखो, फिर प्लस टू माइनस जा रहे हो तो उसको लिखो +25, फिर आगे जाए +P0, प्लस टू माइनस तो +V0, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अब आप VI की वैल्यू रख दीजिए, VI की वैल्यू कितनी है, -20, तो माइनस माइनस +20, 20 + 25 + V0 इक्वल टू 0, तो V0 विल बी इक्वल टू -45। ठीक है, याद करने का तरीका, हमने इसमें जो डायोड लगाया था वो ऐसे लगाया था। याद करने का एक ही तरीका, इनपुट वोल्टेज ये थी, इस डायोड की डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है तो पूरी की पूरी वेवफॉर्म नीचे शिफ्ट होगी, दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो आपकी पूरी की पूरी वेवफॉर्म पहले इतनी शिफ्ट होती फ्रॉम 0 टू -40। लेकिन एक और सब बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, पोलैरिटी इसकी माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो -5 वोल्ट मोर शिफ्टिंग विल बी देयर इन द रिजल्टेंट वेवफॉर्म। तो वो आपकी -5 से लेके -45 तक, कितनी भी बैटरीज लग जाए, कुछ भी लग जाए, जो स्विंग है वो फिक्स रहेगा। जैसे इसकी जो स्विंग है वो 40 वोल्ट की है, इसका जो स्विंग है वो 40 वोल्ट का है, इनपुट का जो स्विंग है वो है 40 वोल्ट। वेव शेप ऑफ द वेवफॉर्म विल नेवर चेंज, the DC level will always change in the clamper. So whether you are trying to find out the biasing of the diode, take 2 points A and B, write the equation that VA minus VB should be greater than or equal to this. Ideal diode है तो 0, silicon diode है तो 0.7, germanium diode है तो 0.3. Now simply put the values of VA and VB. ठीक है, I will recommend writing VI instead of the exact value of the value of the input voltage. VI लिखिए,
दूसरे पॉइंट पे आप जो भी है VB लिख के बायसिंग वोल्टेज के नाम से लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, देन सॉल्व इट। फर्स्ट यू फाइंड आउट द साइकिल, सिमिलर टू दैट कितनी वोल्टेज कैपेसिटर में स्टोर होगी उसके लिए भी आप V 2 पॉइंट्स लीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, एक पे VI ही पुट कीजिए, उससे आप जो है वो दूसरे का निकाल सकते हो। इस तरीके से आपकी जो साइंस की और पोलैरिटी में मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी आप यही एक ही क्वेश्चन कीजिए और इसके जितने वेरिएशन आप कर सकते हो वो अलग से सॉल्व करना, बट फॉर सबमिशन डू फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, A and B पार्ट। ओके, एनी डाउट? I No, will sir. I will also upload this recording on the YouTube, and I think you guys know on the about the channel, and you can simply look again, watch this recording and clear your doubts if you have any. Sir, Sir, which second channel? question में time मैं अभी आपके GR को जो है ना मैसेज कर दूंगा। Okay, sir. हाँ, excuse me sir. यस। सर सेकंड क्वेश्चन में जो इनपुट वेव है उसकी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? इनपुट वेव का टाइम पीरियड, यस, आई थिंक इसमें मिसिंग है वो चीज। फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ओके, अभी आप एक ही क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करके सबमिट मत करना, सबमिट योर होल ट्यूटोरियल शीट 3 whenever we will complete this in the 2. ओके। ओके।